ایران کے ساتھ معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات کے لیے پرامید، کہا ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد پاکستان روانہ ہو چکا۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان آ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کو مختلف انٹرویوز میں صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کروں گا، جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار ترک کرنے ہوں گے۔ ایران کے ساتھ سیز فائر بدھ کی شام ختم ہو جائے گی۔ ڈیل نہ ہوئی تو جنگ یقینی ہے۔ سیز فائر ختم ہوتا ہے تو ایران پر بہت بم گرائے جائیں گے۔ ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں وقت مسلسل کم ہو رہا ہے اور صورتحال انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے کے لیے پر امید تو ہیں، مگر ان کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کہتے ہیں سیز فائر ختم ہوتے ہی ایران پر چڑھ دوڑیں گے۔ ادھر ایران امریکی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کر رہا اور اس کی طرف سے اب تک گرین سگنل نہیں ملا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جہاں ایران کے ساتھ نئے دور کے لیے بات چیت کا امکان ہے۔ نیا معاہدہ مشرق وسطی سمیت پوری دنیا میں امن و سلامتی یقینی بنائے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر وفد کی قیادت کریں گے۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات کوئی کھیل نہیں بلکہ سنجیدہ کوشش ہیں۔ اگر بریک تھرو ہوا تو وہ خود ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا ایران کو ایٹمی ہتھیار ترک کرنے ہوں گے۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں امریکی صدر نے خبردار کیا سیز فائر ختم ہوتے ہی ایران پر شدید بمباری کی جائے گی۔ سوشل پر بیان میں امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ گزشتہ برس ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد اب وہاں سے یورینیم نکالنا ایک طویل اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ امریکہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیر اور متضاد اشارے تلخ پیغامات دیتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ باامانی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ امریکہ ایران سے سرنڈر چاہتا ہے، ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں، ایسا کہنا ہے ایرانی صدر کا۔ کہتے ہیں باامانی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ دھمکیوں کے ساتھ امریکہ سے مذاکرات قبول نہیں، ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا امریکی صدر ٹرمپ مذاکراتی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں وہ ایران کے خلاف نئی جنگ کا جواز پیدا کر لیں گے۔ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے۔ ادھر ایران نے مذاکرات ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی ہیں۔ ایران کا جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز۔ پاکستان کی جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے کوششیں تیز۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات بدھ کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا پاکستان کی جانب سے امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے مثبت کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے بھی متحرک ہے۔ ایران مذاکرات میں شرکت کا مثبت جائزہ لے رہا ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق ٹرمپ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی تیاریاں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پولیس کے ساتھ رینجرز اور پنجاب پولیس بھی تعینات۔ اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل، ریڈ زون میں قائم دفاتر کو ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی مکمل طور پر بند۔ اسلام آباد میں ہونے والے تبلیغی اجتماع کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئی۔ صدر ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔ صدر ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے صدر ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی تو یہ سب کے لیے امن، سلامتی اور تحفظ یقینی بنائے گی۔ عظیم تہذیب رکھنے والا کوئی ملک دھمکیوں پر مذاکرات نہیں کرتا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے یہ اہم
इस्लामी और नजरियाती उसूल भी हैं। काश अमेरिका इस मुसल्लिमा हकीकत को समझ पाता। अजीम तहसीब रखने वाला कोई मुल्क धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं करता। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है ये अहम इस्लामी और नज़रियाती असूल भी है। ईरान ने तजारती जहाज कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना अमरीकी अमल के ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी जहाज सेलर्स अमले और उनके अहल खाना को फौरी रिहा किया जाए। जहाज़ पर कब्जे के दौरान अमले और उनके ख़ानदानों को भी धमकाया गया। ईरान ने तजारती जहाज़ कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरान में हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरों में तेज़ी आ गई। खुर्रमाबाद में हुकूमत और अफवाज के हक़ में बड़ी रैली। ट्रंप की नई धमकी के बाद मुज़ाहिरों के दौरान असलहा बरदार ख़वातीन भी सामने आ गईं। असफ़हान में मुज़ाहिरे में बुरक़ा पोश ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक। जी हाँ, ख़वातीन ने खुद को क्लैशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर से लैस कर रखा था। खुर्रमाबाद में हुकूमत और अफवाज के हक़ में बड़ी रैली निकाली गई। ट्रंप की नई धमकी के बाद मुज़ाहिरों के दौरान असलहा बरदार ख़वातीन भी सामने आ गईं। पाकिस्तान और मिस्र का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मिस्र का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। टैक्स चोरी की रोकथाम। एफबीआर ने शुगर मिल्स में मज़ीद टीमें तैनात कर दी। एफबीआर ने मॉनिटरिंग का दायरा कार 45 शुगर मिल्स तक बढ़ा दिया। शुगर मिल्स की फहरिस्त जारी। मॉनिटरिंग का अमल मज़ीद सख्त। जी हाँ, अफसरान को शुगर मिल्स की पैदावार, फरोख्त और स्टॉक की निगरानी का टास्क दिया गया है। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आमिर नवीद चौधरी, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, एफबीआर की तरफ से शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का जो एक आगाज किया गया था उसको मजीद उस दायरे को बढ़ाया गया और एफबीआर ने 45 जो शुगर मिल्स हैं मजीद उनमें एफबीआर का अमला तैनात किया और इसमें बड़े ब्रांड्स के जो शुगर बनाने वाली फैक्ट्री हैं उन पर भी खास तौर पर जो है अमले की तैनाती अमल में लाई गई है। इस अमले की तैनाती सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की शेख 40B के तहत हुई है और जो अमला शुगर मिल में तैनात होगा ये शुगर मिल की प्रोडक्शन, स्टॉक और सेल्स का जो है वो रिकॉर्ड मुरतब करेगा और शुगर में इस एफबीआर ने सख्ती से हदायत इन टीम्स को की हैं कि ये शुगर मिल के प्रेमिसेस में रहेंगी और उससे बाहर नहीं जाएंगी। साथ साथ इन टीम्स की जो सपोर्ट के लिए एलटीओ और आरटीओ का जो है स्टाफ वो भी मौजूद होगा और ये टीमें शुगर मिल्स के तमाम किस्म के रिकॉर्ड की छानबीन भी कर सकेंगी, उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकेंगी और कोई एग्जीक्यूशन किसी चीज की इन्फोर्समेंट की जरूरत होगी तो वो भी मौका पर इस हवाले से तैनात अफसरान फैसला करेंगे। जी ठीक है आमिर नवीद चौधरी, बहुत शुक्रिया। तवानाई बहरान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4820 मेगावाट है। बिजली की मजमूई तलब 22000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 17180 मेगावाट है। तवानाई बहरान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4820 मेगावाट है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल, WTI 86, मुरब्बन $93 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी इजाफा देखने में आया। ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड सतह अबूर कर ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल, WTI 86, मुरब्बन $93 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी इजाफा देखने में आया। ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड सतह अबूर कर ली। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला ड्रामा निकम्मे नाजरीन के दिलों में घर कर जाता है। छोटी छोटी बातें भी एक बड़ी कहानी की शक्ल में सामने आ रही हैं। शायकीन की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। अरे बेटा, ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? पिछले 2 लाख किस तरह से हजम किए ना, भूली नहीं हूँ मैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा निकम्मे अपनी कहानी की बदौलत दिलचस्पी के नए मोड़ पर पहुंच गया। कभी घरेलू मसाइल की झलक, कभी हंसी मजाक और कभी अचानक जज्बाती मोड़ ने ड्रामे की कहानी में नया रंग मुतारिफ कराया है। मेरा हाथ मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दूंगा।
रिश्तों की कशमकश, माली दबाव, नोक झोंक और गैर मुतवक्का हालात ऐसा माहौल तख्लीक करते हैं जो नाजरीन को खुद से जुड़ा हुआ महसूस होता है। सऊद और जवेरिया समेत दीगर फनकारों की लाजवाब और मज़ाहिया अदाकारी हर सीन को जानदार और शानदार बना रही है। लोगों में 15,000 रुपए बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अभी अकेले जाने की बात कर रहे हो। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। क्या अम्मी रो रही है? अगर आप भी अपनी रोजमर्रा मसरूफियात के दरमियान हंसी, जज्बात और खालिस फैमिली एंटरटेनमेंट का इम्तिजाज देखना चाहते हैं तो देखते रहिए निकम में हर रोज पीर से इतवार की शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। हाँ भाई, शमूले के पप्पे। आपने इस वक्त कॉल की है, आपने काम पे नहीं जाना सुबह? अब इससे क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से ही बेरोजगार हूँ। तुम ब्राइड तैयार करी हो, तुमने मुझसे पूछा? आपको बताते हैं, इसराइल ने लबनानियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी जारी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है फ़ौज लेबनान के इलाके में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी। फ़ौज कब्जा किए गए तमाम इलाकों में पोजीशंस बरकरार रखेगी। गजा की तरह लेबनान में भी येलो लाइन बनाई जा रही है। हिजबुल्लाह का इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का दावा। मार्च से अब तक इसराइली फ़ौज लेबनान में 2,294 शहरियों को शहीद कर चुकी। 7,500 अफराद ज़ख्मी हैं। हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए नई मुश्किल बन गए। हंगरी बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का रुकन बरकरार रहेगा। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर नेतन्याहू हंगरी आए तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। अपडेट करें, हंगरी के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए नई मुश्किल बन गए। हंगरी बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का रुकन बरकरार रहेगा। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 88वीं बरसी आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी और एक आज़ाद वतन का ख्वाब पेश किया। मज़ीद तफसीलात मियां असगर सलीमी से। इकबाल जैसी मुदब्बर और दूर अंदेश शख्सियत का जन्म सदियों बाद होता है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट पे आंख खोलने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर से हासिल की, जिसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम मुकम्मल की। फ़लसफ़े में महारत हासिल करने के बाद आप मज़ीद तालीम के लिए इंग्लिस्तान और फिर जर्मनी गए, जहाँ से PhD की डिग्री हासिल की। अल्लामा इकबाल न सिर्फ एक अजीम शायर थे बल्कि एक मुदब्बर, मुफक्कर और सियासी रहनुमा भी थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को खुदी, इत्तेहाद और बेदारी का दर्स दिया। 1930 में उन्होंने एक अलहदा मुस्लिम रियासत का तस्वर पेश किया जो पाकिस्तान की सूरत में हकीकत बना। 21 अप्रैल 1938 को ये अजीम मुफक्कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ताहम इनके अफकार और शायरी आज भी जिंदा हैं और आने वाली नस्लों की रहनुमाई कर रहे हैं। इनका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के अहाते में वाक़या है, जहाँ आज भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाजिरी देती है। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेंगी। PAA का नोटम जारी। ये पाबंदी 24 मई 2026 सुबह 4:59 तक मौसर रहेगी। PAA की जानिब से नोटम जारी किया गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेंगी।